स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरपाल सिंह। असी अज करांगे चैप्टर 14 विच इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। प्रॉब्लम्स थानू लिखा आया करेगा LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। इहदे विच आपां पढ़ांगे एरिया अंडर लाइनस। इदां सानू लाइनस दित्तियां होया करनगियां, इन्हां दे अंडर आउंदा एरिया मैक्सीमाइज मतलब मैक्सीमम एरिया या जिहड़े फंक्शनस दिते होया करनगे उन्होंने मैक्सीमाइज़ करनों कहणगे तो मैक्सीमम वैल्यू वेखनी आ, मिनीमाइज़ करनों कहणगे तो मिनीमम वैल्यू वेखनी आ। हुण बेसिकली इहदे अंडर ये दो लाइनस ने। +1 दे विच आपां कीता कि जे कंडीशन ट्रू आया करनगियां, लीनियर इनइक्वैलिटी पढ़नी ना आपां, उहदे विच AX + BY <= C या AX + BY <= C, इस टाइप दियां इक्वेशनस आउणगियां। ओरीजन दे कोआर्डीनेट्स 0 0 पुट करके आपां वेख्या करांगे कि जे तां ये दोनों लाइनस ते अंडर जदों इक्वल लै लांगे तो फिर ये स्ट्रेट लाइनस बन जाणियां। उन्हां दे अंडर आउंदा एरिया जिहड़ा है, जे तां ये कंडीशन ट्रू होया करेगी फिर साढ़े कोल मान लो दोनों ट्रू आ तो एरिया ये वाला होया करेगा। ये रफ जिहा आइडिया मैं देन लगा। जे इदां पहली ट्रू दूजी फॉल्स आ गई कंडीशन, फॉल्स दा अवे फ्रॉम द ओरीजन जांदा ही, +1 दा काम आ। ते जे ट्रू होवे कंडीशन तो इहदा अलोंग द ओरीजन कॉमन एरिया ये वाला आ जांदा। इदां ही होर की पॉसीबिलिटीज़ बन सकदियां। जे ये हुण सैकेंड वाली ट्रू तो फस्ट वाली फॉल्स कंडीशन आ जाए तो फॉल्स का मतलब अवे फ्रॉम द ओरीजन, ट्रू का मतलब अलोंग द ओरीजन, तो ये वाला शेडेड एरिया आया करेगा। हुण ये जो मैं लिखाया है ये +1 का काम सिर्फ रिकॉल करवाया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਵੇਖਣੀ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਵੇਖਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ find the maximum value of f, maximum value of f equals to x + 2y subject to constraints, subject to constraints 2x + 3y <= 6, x + 4y <= 4, x, y <= 0। इस फंक्शन की मैक्सीमम वैल्यू फाइंड करनी आ जदों कि सानू कंडीशनस दित्तियां होण 2x + 3y <= 4, x + 4y <= 2x + 3y <= 6 and x + 4y <= 4। हुण जे सिंपली आपां इहनूं समझना होए ना, क्वेश्चन तो आपां कर लवांगे पर इहदा मतलब वेखना होए कि फंक्शन की मैक्सीमम वैल्यू या मिनीमम वैल्यू का फंक्शन का मतलब की हुंदा है। तो ये फंक्शन सानू सपोज करो जिवें कोई प्रॉफिट फंक्शन दिता गया होए
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਐਕਸ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੋਣ, ਵਾਈ ਦੂਜੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਕੰਸੀਡਰ 2x + 3y = 6। ਸੇ ਇਟ ਐਜ਼ ਨੰਬਰ 1 2 ਐਂਡ 3। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 2x + 3y ਇਹਨੂੰ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਏਰੀਆ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ x ਨੂੰ 0 ਅਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ x 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 2। ਵੈਨ ਵੀ ਪੁੱਟ y = 0 ਵੀ ਗੈਟ x = 3। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। x ਅਤੇ y ਲਿਖ ਲਿਆ। x 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ y ਆ ਗਿਆ 2। ਜਦੋਂ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ x ਆ ਗਿਆ 3। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੰਸੀਡਰ x + 4y = 4। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੋਗੇ x ਨੂੰ 0 ਅਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ y 1 ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ y ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4। ਇਹਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। x 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ y 1 ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ y ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ x ਆ ਗਿਆ 4। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ, x 0 y 2। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 2। x 3 y 0। ਜੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 0 ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ 3 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੰਬਰ 3 ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਨੰਬਰ 3 ਇਜ਼ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਟੂ ਨੰਬਰ 1। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ 3 ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਨੰਬਰ 1 ਏਰੀਆ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ 4 ਨੰਬਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ। x 0 ਅਤੇ y 1। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1। ਇੱਥੇ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣੀ ਆ 0 1 ਪੁਆਇੰਟ। x 4 y 0 3 ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ 4 ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ 4 0 ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ x > 0 ਅਤੇ y > 0 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ x ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, y ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਓਨਲੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ 0 0 ਇਨ ਨੰਬਰ 1 ਐਂਡ 2। 1 ਐਂਡ 2 ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 3 ਅਤੇ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ x ਅਤੇ y ਨੂੰ 0 0 ਮਤਲਬ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੇਖਣੀਆਂ ਹੈ ਟਰੂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
इत्थे x ते y दोनों 0 पुट करांगे साडे कोल आ जाना 0 लैस दैन इक्वल्स टू 6 विच इज़ ट्रू। इत्थे 0 पुट करांगे तो इत्थे भी आ जाना 0 लैस दैन इक्वल्स टू 4 विच इज़ ऑल्सो ट्रू। फस्ट लाइन जिहड़ी आ उहदा भी एरिया ट्रू आया, सैकेंड दे अंडर आउंदा एरिया सैकेंड दी कंडीशन भी ट्रू आई। ट्रू दा मतलब एरिया अलोंग द ओरीजन, इहदे भी अलोंग दा, तो कॉमन एरिया साडे कोल ये आ जाना। हुण इत्थों तक जिहड़ा ये +1 दे विच बड़ी चंगी तरह किया जाता। लीनियर इनइक्वैलिटी चैप्टर दे विच ग्राफ प्लॉट मतलब जदों सिंपल लाइनां ड्रॉ कीतियां ही, ये 10th क्लास तक का काम ही। जदों आपां ग्राफ उन्होंने दा एरिया शेड कर दिता, ये +1 दे अंडर आ गया। हुण +2 दे विच एक्सट्रा की करना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे विच, इहदे विच हुण ये जिहड़े ओ तां इहनूं A-B-C पॉइंट कह लेना। बाउंड्री वैल्यूज़ जिहड़ा शेडड एरिया साडा आ गया उहदे नाल लगदे लगदे जिहड़े पॉइंट्स होणगे वो तुहाडीआं बन जाणगीआं बाउंड्री वैल्यूज़। हुण ये बाउंड्री वैल्यूज़ बन गईआं। ओरीजन दे कोऑर्डीनेट सानूं पता है 0 0 हुंदे आ। ए पॉइंट दे कोऑर्डीनेट 0 1 आ गए, बी पता नहीं आ, बी आपां फाइंड आउट करांगे हुणे, ते सी दे कोऑर्डीनेट आ गए 3 0। हुण दोनों कंडीशन ट्रू होने करके एरिया साडा ये वाला आ गया। इनू बोलते हैं फिजिबल रीजन। की बोलना इनू आपां फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन दे जिहड़े साइड वाले सारे पॉइंट्स होंदे बाउंड्री पॉइंट्स होंदे आ। ये बाउंड्री पॉइंट्स ते आपां फंक्शन दी मैक्सीमम मिनीमम वैल्यू चैक करांगे। उस तो पहला हुण सानू बी पॉइंट क्योंकि पता नहीं आ, तो बी इज़ द इंटरसैक्शन पॉइंट ऑफ बोथ द लाइन्स एंड लाइन्स आर नंबर 3 एंड नंबर 4। नंबर 3 ते नंबर 4 नूं हुण साइमल्टेनियसली जिवें आपां सॉल्व कर दिंदे आ, इदां सॉल्व करके तो आपां वैल्यू फाइंड आउट करांगे एक्स वाई दियां। वो जिहड़ी वैल्यू आएगी एक्स एंड वाई दी, वो पॉइंट साडे कोल बी आ जाएगा। बी इज़ वॉट? बी इज़ द intersection of number 3 and number 4। 3 लाइन साडे कोल जिहड़ी वो हुई 2x + 3y is equals to 6 and number 4 line is x + 4y equals to 4। इन्हां दोनों नूं साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होए तो इनू 2 दे नाल मल्टीप्लाई कर दो सारी इक्वेशन नूं। ये बन जाना 2x + 8y इज़ इक्वल्स टू 8। मतलब साडे कोल इनू नंबर 4 नूं जदों 2 दे नाल मल्टीप्लाई करांगे, इत्थे मैं डायरैक्ट लिख देना क्योंकि ये 7वीं 8वीं तो स्टार्ट हो जाता काम। इत्थे आ जाना 2x + 8y इज़ इक्वल्स टू 8। तो इनू माइनस कर दो, 2x दे नाल 2x कैंसल हो जाएगा। यह आ जाना -5y - 2, यानी कि y की वैल्यू आ जानी साढ़े कोल 2/5। y की वैल्यू पुट कर दो नंबर 3 या 4 दे विच, 4 च पुट कर देने आप तो x साढ़े कोल क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 4 माइनस इत्थे y की जगह ते 2/5 पुट कर देवांगे 4। ये आ जाना साढ़े कोल 20 - 8/5 12/5। सो एक्स वाई दियाँ वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लियाँ। ये पॉइंट की मिल जाएगा सानू बी इंटरसैक्शन पॉइंट, ये मिल गया 12/5, 2/5। 12/5 बी की वैल्यू आ गई, 12/5, 2/5। हुण ये साडे कोल OABC ये चारों बाउंड्री वैल्यूज़ मिल गई। इन्हां ते आपां फंक्शन दी मैक्सीमम वैल्यू चैक करनी आ। एक गल वेखण वाली ये हुंदी है कि ये जिहड़ियां वैल्यूज़ दित्तियां ये ते 0 0 का मतलब है विल पुट x
and y both 0 at O, and at point A we'll put x 0 y 1. Similarly बाकी पॉइंट्स भी आपां वेख लवांगे। हुण ये वेखना है कि फंक्शन की मैक्सीमम वैल्यू कित्थे आउंदी ते मिनीमम वैल्यू कित्थे आउंदी। एट ओ ओरीजन एफ साडे कोल क्या आ जाना, ओरीजन के उपर एक्स भी 0 तो वाई भी 0 पुट करांगे तो आंसर 0 आ जाना। एट ए इज़ वॉट, ए इज़ 0,1। इत्थे एफ की वैल्यू वेखांगे। फंक्शन दे विच जिहड़ा गिवन फंक्शन है जिन्हों आपां मैक्सीमाइज़ करना होवे या मिनीमाइज़ करना हो, इत्थे मैक्सीमाइज़ करना है, जे मिनीमाइज़ करना है तो फिर मिनीमम वैल्यू वेख लवांगे। ए दे विच एक्स 0 भर देना तो वाई 1, एक्स 0 तो वाई 1 पुट करांगे। ये क्या आना 0 + 2 × 1, आंसर आ जाएगा 2। एट बी साडे कोल ही 12/5 2/5 तो इस पॉइंट ते एफ वेखना, एफ की आ जाना एक्स की वैल्यू 12/5 प्लस वाई की वैल्यू 2/5, ये बन जाना 4/5, 16/5, 16/5 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। एट सी पॉइंट साडे कोल आ 3,0। इत्थे फंक्शन की वैल्यू वेखांगे तो x 3 y 0, 3 + 0 3। सो फंक्शन का आंसर मैक्सीमम कित्थे आया साडे कोल, एट पॉइंट बी। इसदा मतलब f इज़ मैक्सीमम एट बी। मतलब मैक्सीमम वैल्यू कितनी होगी, एफ इज़ मैक्सीमम 16/5 इन्ना आया साडे कोल। किहड़े पॉइंट ते आ, बी ते। ये दोवें चीज़ां सानू पुछ सकते हैं कि फंक्शन की मैक्सीम जदों उन्हें कहा ना मैक्सीमाइज़ या फाइंड द मैक्सीमम वैल्यू ऑफ एफ, तो मैक्सीमम वैल्यू कितनी आई 16/5। किहड़े पॉइंट ते आई है, एट पॉइंट बी। मतलब ए बी सी डी इदां जिहड़े पॉइंट साडे कोल आ जाया करनगे, उन्हां दे विचों ही आपां वेखिया करना कि किहड़े पॉइंट दे उपर फंक्शन मैक्सीमम वैल्यू दिंदा पिया है। इस तो बाद हुण आपां करांगे एक सम मिनीमाइज़, जिहदे विच फंक्शन की मिनीमम वैल्यू वेखांगे। इस फंक्शन नूं आपां बोलते हैं ऑब्जैक्टिव फंक्शन। जिहड़ा फंक्शन गिवन होंदा है उन्हों ऑब्जैक्टिव फंक्शन बोलिया जाता है। तो नाल दित्तियां होंदियां कंडीशनस, जिन्हां कंडीशनस नूं फॉलो करके तो आपां ऑब्जैक्टिव फंक्शन की मैक्सीमम या मिनीमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होंदी है। 11th सम आ मिनीमाइज़ द ऑब्जैक्टिव फंक्शन। मतलब मिनीमम वैल्यू वेखनी है जैड दी। जैड फंक्शन दिता है सानू 2x + 2y। STC मतलब सब्जैक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स कंडीशनस वो की दित्तियां ने x + y <= 120, x + y <= 80, x <= 80 and y <= 60। x, y both are <= 0। हुण वेखो साडे कोल 1 2 3 एंड 4 4 इक्वेशनस आ गई। मतलब हुण 4 जदों आपां इनइक्वैलिटी नूं इक्वैलिटी चेंज करांगे 4 लाइनस आउणगियां, उन्हां दे अंडर आउंदा एरिया वेखना है कि वो मैक्सीमाइज़ या मिनीमाइज़ किवें करना है। इत्थे मिनीमाइज़ करना है। हुण सब तो पहला कंसीडर करांगे x + y = 120। इहदा डायरैक्ट ग्राफ बना लैने आ। टेबल x y, x 0 पुट करांगे तो y आ जाना 120। जदों y नूं 0 पुट करांगे तो x 120 आ जाएगा। सैकेंड ही x + y = 80। तो इहदा भी जदों आपां
ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਐਕਸ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਈ ਆ ਗਿਆ 80, ਜਦੋਂ ਵਾਈ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਐਕਸ 80 ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਥਰਡ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਐਕਸ ਈਕੁਅਲਸ ਟੂ 80, ਫੋਰਥ ਵੀ ਵਾਈ ਈਕੁਅਲਸ ਟੂ 60। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਡਰੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਧਰ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਡਰੋ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਐਕਸ 0 ਵਾਈ 120, ਐਕਸ 0 ਤੇ ਵਾਈ 120। ਐਕਸ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਈ 120 ਆ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਰੋ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਵਾਈ 120 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਈ ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਕਸ 120 ਆ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 120, 0 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਲਾਈਨ। ਸੈਕਿੰਡ, ਐਕਸ 0 ਵਾਈ 80, ਐਕਸ 0 ਵਾਈ 80, 120 ਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਏਗਾ, 0, 80, ਐਕਸ 80 ਵਾਈ 0, ਇੱਧਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਣਾ 80, 0, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ। ਥਰਡ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜੇ ਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਐਕਸ ਈਕੁਅਲਸ ਟੂ 80, ਐਕਸ ਈਕੁਅਲਸ ਟੂ 80, ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਬਣੇਗੀ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 80 ਲੈ ਕੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। y ਈਕੁਅਲਸ ਟੂ 60, ਇੱਥੇ 80 ਆ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 60 ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਆਏਗੀ ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ y ਈਕੁਅਲਸ ਟੂ 60 ਲਾਈਨ, x ਈਕੁਅਲਸ ਟੂ 80 ਲਾਈਨ। ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਨੰਬਰ 1, 2, 3 ਐਂਡ 4, ਚਾਰੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਬੋਥ ਆਰ 0, ਸੋ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਈਕੁਅਲਸ ਟੂ 120 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਟਰੂ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਸ਼ੇਡ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ। ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਡ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਟਿਕਸ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ 0 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 80, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 80 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਾਲਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਬਣੇਗਾ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਓਰੀਜਨ। ਥਰਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਲੈਸ ਦੈਨ ਈਕੁਅਲਸ ਟੂ 80, ਇਹ ਵੀ ਟਰੂ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਆਏਗਾ, ਇੱਥੇ 80 ਹੀ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਓਰੀਜਨ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੀ 0 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 60, ਇਹ ਤੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਫਾਲਸ ਆ ਜਾਣੀ। ਫਾਲਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 60 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਓਰੀਜਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ 0 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 60 ਹੀ ਉਤੋਂ ਅਵੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। 80 ਤੋਂ ਅੰਡਰ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਲੈਸ ਦੈਨ 80 ਵਾਲੀ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਓਰੀਜਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ 80 ਵਾਲੀ ਹੀ ਇਤੋਂ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਓਰੀਜਨ 120 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਓਰੀਜਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਜ਼ੀਬਲ ਰੀਜਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ A
B, ये पॉइंट आ जाना C, ये आ जाएगा D, ये आ जाना E पॉइंट। आपां किहड़े-किहड़े पॉइंट्स फाइंड करने हुण? C, D एंड E पॉइंट्स। A B सानू पॉइंट्स पता ने, आपां C D ते E पॉइंट्स फाइंड आउट करने आ। हुण आपां वेखना है कि C पॉइंट की आ। C इज़ द इंटरसैक्शन पॉइंट ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 3। जे इन्हां नूं आपां इनइक्वैलिटी तो इक्वैलिटी चेंज कर दईए, सॉल्विंग 1 एंड 3 इक्वैलिटी यूज़ करनी है, इत्थे इनइक्वैलिटी नहीं यूज़ करांगे। पहला इनू इक्वल लिख के फिर मतलब x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 120 एंड x इक्वल्स टू 80। इन्हां लाइनां दी इंटरसैक्शन है ना, तो ये x की वैल्यू 80 पुट कर लो। देयरफॉर वी विल गेट y इज़ इक्वल्स टू, जो x नू 80 पुट करांगे तो y आ जाना साडे कोल 40। देयरफॉर C पॉइंट की आ जाना साडे कोल 80, 40। C पॉइंट की वैल्यू मिल गई सानू 80, 40। फिर D इज़ वट? D देखो D पॉइंट तो सिंपली मिल जाना, क्योंकि D दे इस पॉइंट ते x की वैल्यू 80 आ ते y की वैल्यू 60 आ। इहदा मतलब D पॉइंट की आ जाना साडे कोल 80, 60। D पॉइंट ते आ जाएगा साडे कोल 80, 60। इत्थे साडे कोल 60 ते 40 उपर आउंदा पिया। इहदा मतलब साडा ग्राफ दे विच थोड़ी जी मिसटेक हो सकती है, क्योंकि ये रफ स्कैच ने। जो एग्जैक्ट तुहानूं ग्राफ पेपर मिलेगा उदों प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस करके इनू एक बार दोबारा वेखते हैं। इधर x एक्सिस y एक्सिस 20 दे आपां बना लैंदे आ 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। इधर भी इदा ही 20, 40, 60, 80, 100 एंड 120। हुण वेखते हैं x0 y120 0, ये पॉइंट आ जाना साडे कोल 0, 120 वाला। x120 इत्थे आ जाएगा, ये पॉइंट बन गया 120, 0। फिर x80 x0 y80 ये वाला पॉइंट आ जाना। इन्हां नूं आपस च मिलावांगे तो साडे कोल ये बन जाएगा 0, 80, 80, 0। उस तो बाद आपां दो लाइनां बनाइयां, x इक्वल्स टू 80 इधर नूं जाएगी उपर नूं, तो y इक्वल्स टू 60 y 60 इधर। हुण कंडीशनस वेखते हैं। 120 तो लैस मतलब अलोंग द ओरिजिन, 0 ग्रेटर दैन 80 अवे फ्रॉम द ओरिजिन, x लैस दैन 60 अलोंग द ओरिजिन, x ग्रेटर दैन 60 तो ग्रेटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। सो ये वाला एरिया साडा जिहड़ा है कॉमन एरिया आ जाना, शेडड एरिया, जिन्हों आपां फिजिबल रीजन बोल देंगे, फिजिबल रीजन। तो पॉइंट साडे कोल A, B, C एंड D।
एंड डी पॉइंट ये वाला आ जाना। ए तो डी पता ने, बी इज़ द इंटरसैक्शन, हुण वेखो पी पॉइंट इंटरसैक्शन है नंबर 1 एंड नंबर 4 दी। नंबर 460 वाली लाइन सॉल्विंग 1 एंड 4, इन्हों सॉल्व करने तो पहला आपां इनइक्वैलिटी नूं इक्वैलिटी चेंज करके सॉल्व करना, क्योंकि लाइनां दी इंटरसैक्शन आपां वेखनी है। एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 120 एंड y इज़ इक्वल्स टू 60। y की वैल्यू 60 पुट करोगे तो x साढ़े कोल कितना आ जाना, वो भी 60 आ जाएगा। इसदा मतलब b पॉइंट जिहड़ा है वो आ जाना 60,60। b पॉइंट की आ जाना साढ़े कोल 60,60 एंड c इज़ द इंटरसैक्शन ऑफ 2 एंड 4। C इज़ द इंटरसैक्शन ऑफ ए 2 वाली लाइन ही 2 के कोरसपोंडिंग जी लाइन बननी तो 4 दे। C सॉल्विंग 2 एंड 4, 2 की है साढ़े कोल x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 80 तो दूजी लाइन है साढ़े कोल y इज़ इक्वल्स टू 60। इसका मतलब इन्होंने दोनों सॉल्व करांगे तो x आ जाना साढ़े कोल 20। मतलब C पॉइंट की मिल जाएगा सानू 20,60। C पॉइंट इत्थे आ 20,60 पॉइंट सानू मिल जाएगा। हुण इन्हां चारों पॉइंट्स ते आपां फंक्शन दी वैल्यू चैक करनी है, मैक्सीमम कित्थे आ ते मिनीमम कित्थे आ। उन्हां चों जिहड़ी मिनीमम वैल्यू होएगी वो साडा आंसर होएगा, क्योंकि इहदे विच आपां फंक्शन दी मिनीमम वैल्यू वेखणी। एट ए पॉइंट 0,120 आ तो इत्ते Z वेखांगे x 0 भर दांगे, y 120 भरांगे तो 240 आ जाना। एट बी पॉइंट साढ़े कोल 60,60 इत्ते Z वेखांगे, इत्ते 60 पुट करोगे 120 प्लस 120 240 आ जाना इत्ते भी। एट सी पॉइंट साढ़े कोल 20,60 इत्ते Z वेखांगे तो इत्थे x 20 भरिया तो यह आ जाना 40 प्लस x 60 भरिया तो 120 आ जाना, यह आ जाना साढ़े कोल 160। एट डी पॉइंट साढ़े कोल कितना है 0,80 तो इत्ते Z वेखोगे x 0 तो y 80 भरांगे तो यह आ जाना 160। हुण 2 पॉइंटां ते फंक्शन का आंसर मैक्सीमम आया, 2 ते मिनीमम आया। इसका मतलब मिनीमम Z कितना है 160। एट सी कितना 20,60 एंड डी कितना आया 0,80। मतलब इन्हां 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ पॉइंट्स के उपर फंक्शन की मिनीमम वैल्यू आउंदी पई आ ते दोनों ही पॉइंट साडा आंसर आ जाणगे। जेकर मैक्सीमाइज़ करन नूं क्या हुंदा तो फिर आपां इन्हां दोवां चों वेखना ही मैक्सीमम आंसर किते, तो मैक्सीमम आंसर Z दा जिहड़ा है 240 ये ए ते बी 2 पॉइंटां दे उपर आउंदा पिया। तो फिर उस जे मैक्सीमाइज़ का केस हुंदा तो फिर आपां कहना ही मैक्सीमम Z इज़ इक्वल्स टू 240 एट पॉइंट ए एंड बी। सो ये साडे कोल लीनियर इनइक्वैलिटी दे इस तरह के सम होणगे। तो मैं शुरू दे विच ही सारे केस जिहड़े आ इहदे विच जिहड़ी गलती मेरे कोलों होई ही ग्राफ बनाउण दे विच वो तुहाडे एग्जाम दे विच होण दे चांसिस नहीं होणगे, क्योंकि ग्राफ पेपर मिलेगा। ग्राफ पेपर की जिहड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर हुंदी आ। जदों आपां रफ स्कैच बनाउने आ उहदे विच चांसिस हो जांदे आ पॉइंट उत्ते थल्ले किसी वेले लिया जांदा, पर ग्राफ पेपर दे विच वो भी जे आपां चांसिस घटाउणे होण तां फिर इदां इंटरवल बना लिया करो स्टार्टिंग दे विच ही। जे इंटरवल नहीं बनावांगे फिर प्रॉब्लम आ सकती है।
तो ग्राफ पेपर तो क्योंकि इंटरवल्स बने होया करनगे तो फिर ग्राफ गलत होने के चांसिस नहीं होणगे। तो हुण केस पॉसीबल किहड़े किहड़े हो सकते हैं, ये ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन वो मैं तुहानूं फिर तो एक बार दस देवां। लाइनां पैरलल आ सकदियां, तो एक लाइन जिहड़ी ओरीजन चों पास करदी हुंदी है इदां x = y या ग्रेटर दैन इक्वल्स टू y, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 कुछ भी पिया होए ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ x ग्रेटर आ तो एरिया अलोंग x एक्सिस छेड़ कर देना। जे इदां होवे तां दिता है x लैस दैन इक्वल्स टू y, y दे अलोंग एरिया छेड़ कर देना। फिर एरिया अलोंग y एक्सिस इफ y इज़ ग्रेटर दैन x। बाकी लाइनां दे ते आपां सिंपली वेख ही लए आ कि उन्हां दे ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग एरिया जिहड़े आ शेड होने। पर जे कोई लाइन ओरीजन के विचों ही पास कर जाए तो फिर साडे कोल तरीका की हुंदा है, एरिया अलोंग द एक्स एक्सिस आएगा या एरिया अलोंग वाई एक्सिस आएगा। बाकी ये मान लो फॉल्स, ये ट्रू, तो ट्रू दा अलोंग द ओरीजन, फॉल्स दा अवे फ्रॉम द ओरीजन, ये कॉमन एरिया आ जाना। हुण एक केस बन सकता दोनों ही फॉल्स, इहदा भी अवे फ्रॉम द ओरीजन, इहदा भी अवे फ्रॉम द ओरीजन। इस केस दे विच एरिया आया करेगा अनबाउंडड। अनबाउंडड इस वार सिलेबस दे विचों घटा दिता गया, मतलब इस साल तुहानूं अनबाउंडड वाला क्वेश्चन जिहड़ा वो एग्जाम दे विच नहीं आएगा। अदरवाइज अनबाउंडड दा सम भी आउण दे चांसिस हुंदे आ। सो आपां ये नैक्सट टाइम किते करांगे अनबाउंडड दा सम भी। तो बाकी पॉसीबिलिटीज़ यही, ये वाला एरिया आ सकता या ये आ सकता या ये वाला आ सकता या अनबाउंडड आ सकता, या इन्हां दे विचों लाइन पास कर जाए तो फिर आपां नाल ही ये भी चैक कर लांगे अलोंग द एक्स एक्सिस आएगा एरिया या अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस यानी कि अलोंग वाई एक्सिस आएगा। सो ये साडा अज दा लैक्चर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे बेस्ड अपॉन सी। इस 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा 100%, तो यदी तैयारी प्रॉपर जी कर लैनी आ।